morning friends. Today morning we decided that we will go to Umaria. It's 60 kilometer around from Katni. So we thought like we'll show you how a small town looks like. So this is Katni. It's a city in Madhya Pradesh and very near to Jabalpur. Many people know Jabalpur, that's why I'm referencing Jabalpur. Katni is also called Marble City, Lime City, because there is so much of lime production here. This is the bus stand of Katni on the left side. We are going straight. Actually, we wanted to go on the back side road, but it was through the city. But we thought like, okay, let's go from this side so that we will also see the road condition that we have to go tomorrow for Siri and Varanasi. So we are going now. What else? It's you can see like so many shops are there. This area has lot of automobile shop like garage and all those things. Mechanical shops are there related to cars and vehicles, workshops. This road is an internal road. Earlier it used to be the main road, but after the construction of the highway, which is like a bypass from where we came yesterday, right, from Sivani. So this is right now we are going internally, and this will eventually connect to the bypass road. And most of the cities in Jabalpur area, Katni and Satna, Maihar have been villages, right, do have this bypass. So earlier the villages used to have a different type of charm. So many vehicles used to pass through them, right, pass through the villages and small towns. Now the big vehicles are not going at all. So here Katni, there are so many people living, so you can see a lot of vehicles. But if you go to village like Gunwara or Amdara, everything now bypasses from bypass. So the whole road after 6 o'clock sometimes looks so virana. It looks like there is a curfew, right? Yeah, other than that we are continuing. And this side, the left side, here this is the road that goes further to some marriage function halls. Big marriage function halls are here, and further on this road also there are a lot of open spaces. So many marriage function hall, convention hall have come up in this area. इस एरिया में आ गए हैं ये सारे बड़े बड़े. तो लोगों ने अच्छा स्पॉट किया कि कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. देखिए, हम सोचते हैं कि बड़े शहरों में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बट एक्चुअली में देखा जाए तो छोटे शहरों में ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा है. भले आपको लगेगा कि छोटे शहरों में महंगाई कम है, पर महंगाई कम है तो डिमांड भी उसके हिसाब से है, समझ रहे हैं? तो मार्जिन भी उसके हिसाब से है. यहाँ पे आपको लेबर चीप मिलेगा, राइट, आपको लेबर चीप मिलेगा, फिर आपको पानी सस्ता मिलेगा, राइट, आपका किराया सस्ता होगा, इसलिए चीज़ें सस्ती हो जाती हैं कंपेयर टू बिग सिटीज़. बट एट द सेम टाइम आपका जो मार्जिन है वो आप पे ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बना सकते हैं, है ना. तो अभी हम चल रहे हैं, ये अभी हम सिटी के बाहर निकले नहीं हैं, अभी हम सिटी पे ही हैं. सो कटनी में एक रिवर भी है जिसका नाम है कटनी नदी, ठीक है. कटनी नदी पहले बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी. अब तो नदी और नाला में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है. लेकिन आज से 10 साल पहले जब एक बार बहुत बारिश हुई थी, बाढ़ आई थी, तो हमारा वाला जो एरिया है आधार का और ये सब एरिया, ये लो लाइंग एरिया आता था, तो पूरा पानी भर गया था, है ना. तो सडनली उस दिन कटनी नदी को गुस्सा आ गया रहा होगा. उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने उसको एक्सपर्ट कर दिया इतना कि अब नदी ही नहीं रह गई, है ना भाई. अब यहाँ पे एक डैम भी है कटनी के पास ही है, विच इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. अच्छा, वाटर सप्लाई में नदी का पानी फिल्टर होकर आता ही है एज ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. सब जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट मोस्ट ऑफ द हाउसेस ऑल्सो हैव डन देयर ओन बोरिंग. बोरिंग मीन्स बोरवेल. सो विद इन देयर हाउस हम लोगों ने भी अपना बोरिंग किया है. ऐसे ही सब ने किया है, सबके पास बोरिंग है खुद का. तो कोई
डिपेंडेंसी नहीं है। बट प्रॉब्लम वही है कि जो बोरिंग का पानी है उसका जो टेस्ट है, बिकॉज मैंने जैसे बताया आपको कि लाइम सिटी है ये, तो वो पानी ना पूरा वाइट वाइट चूना चूना टाइप का आता है, तो उसमें पानी पीने के हिसाब से आपका थोड़ा सा वो रहेगा। अनलेस आप जब अब तक यूज टू हो जाओगे तब तो बात अलग है। तो थोड़ा सा पानी का टेस्ट आपको हमारे भाषा में बोलते हैं भकराइन भकराइन लगा है ना मम्मी? तो उस तरह का टेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा चूना मिला, आपको फील हो जाएगा, है ना। और बर्तन में वाइट वाइट तो दिखता ही है, अगर बर्तन में आपने पानी काफ़ी देर तक रख दिया तो ये चीज़ है। चलिए अभी यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं, जब ज्वाइन करते हैं हम हाईवे को तब आपको बताते हैं। फ्रेंड्स अभी मुझे मेरी बीवी ने मेरी बगल में जो बैठ के वीडियो बना रही है, उसने रियलाइज़ करवाया कि मैं बोलते बोलते स्विच हो जाता हूँ इंग्लिश पे, और फिर मैं इंग्लिश में ही बोलना चालू कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा अंग्रेज समझता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका कहना बिल्कुल सही है कि जो हमारी ऑडियंस होने वाली है, जो हमारी ये वीडियो देखेगी, हमारे दोस्त, हमारे नेबर, हमारे शहर में रहने वाले साथी जो कटनी के हैं, जबलपुर के हैं, इस एरिया के हैं, वो जब ये वीडियो देखेंगे और मैं इस तरह की इंग्लिश यूज़ करूँगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग को समझ में आए, है ना। तो मुझे हिंदी का प्रयोग करना चाहिए और ये मेरी गलती है। और ये मेरी गलती अब क्या है कि हमारी आदत है, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ वहाँ पे हम लोग को इंग्लिश ही हमारा बात करने का, कम्युनिकेशन करने का वो लैंग्वेज है। तो हम स्विच हो जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कि हम स्विच हो गए हैं। हालांकि मैं अगली बार से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस पर थोड़ा ध्यान दें। अच्छा ठीक है, अब हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पे हम उमरिया के लिए टर्न ले रहे हैं, है ना। उमरिया के लिए हम ये टर्न ले रहे हैं। यही रोड बांधवगढ़ भी जाता है, बांधवगढ़ ये रोड जाता है। बांधवगढ़ जैसे मैंने बताया, जो यहाँ के लोकल वाले लोग हैं उनको तो अच्छी तरीके से पता होगा कि ये बहुत अच्छी एक टाइगर रिजर्व है, बहुत अच्छा है ये। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, विदेशों से आते हैं, अपने शहरों से आते हैं, अपने इंडिया से भी कई बड़े बड़े जगह से यहाँ आते हैं। अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, तो फैसिलिटीज़ के नाम पे सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि अरे छोटी जगह है यहाँ पे तो ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। नहीं ना, छोटी बिल्कुल जगह नहीं है ये। आप अगर आप जबलपुर, कटनी को, सतना को, रीवा को छोटी जगह करके अगर आप साइड करेंगे तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया अब वैसा नहीं रह गया है जैसा आज से 10 साल पहले था। ठीक है, अब ये एरिया बहुत विकसित हो गया है, बहुत विकसित हो गया है। हर चीज़ मिलेगी आपको, जो चाहिए वो मिलेगी। 5 स्टार होटल चाहिए 5 स्टार होटल मिलेगा, ठीक है। सारे तरह के आपको कम्युनिकेशंस अवेलेबल हैं, फ़्लाइट्स हैं। जबलपुर से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी मुंबई जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए, है ना। ट्रेन्स की बात तो ऐसी है, भरमार है। आपको डेली की कम से कम 10 से 15 ट्रेन्स हैं जो दिल्ली जाएंगी, ठीक है। दिल्ली के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको मुंबई जाना है तो कम से कम नहीं तो 7-8 ट्रेनें डेली की हैं मुंबई के लिए। इसी तरीके से डिफरेंट सिटीज़ के लिए, साउथ के लिए भी ट्रेनें हैं ऑन ए डेली बेसिस। तो सब कुछ अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। हाँ, थोड़ा ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुआ जितना साउथ के सिटीज़ में हुआ है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी चूक रही है हमारे सिस्टम की, कि इस मध्य प्रदेश को ज़्यादा इन्होंने वो नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया, जबकि मध्य प्रदेश में सब कुछ है। यहाँ पे जगह है, पानी है, मौसम अच्छा रहता है ना, सब कुछ बराबर है। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग अच्छे हैं यहाँ पे। आप ये मान लीजिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि एमपी के लोग सबसे नंबर 1 हैं, लेकिन पूरे इंडिया में अगर आप सबसे देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको एमपी के लोगों का जो फीडबैक रहेगा कि कैसे लोग हैं, 90% लोग आपको अच्छा ही बोलेंगे। हाँ, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। यहाँ पे भी क्राइम होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता, जीरो है, बिल्कुल होता है। लेकिन वही है, क्राइम करने वाले लोग की जो मानसिकता होती है वो अलग होती है। वो किसी जगह के नहीं होते, उनकी सोच ही अलग होती है, वो अलग तरह के लोग होते हैं, है ना। चलिए चलते रहते हैं, छोटे छोटे गलियों से जा रहे हैं हम। यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो लोगों ने यहाँ पे रेत डाल दी है अपने घर की भी बाहर। बाकी रोड देखिए आप,
सीमेंटेड रोड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते रहते हैं, बताते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमने NH43 को जोड़ लिया है। ठीक है, ये NH43 है, नेशनल हाईवे नंबर 43। अब हम लोग इससे जा रहे हैं और ये हमने कटनी के बाईपास रूट से जोड़ा है। NH30 का जो NH30 से कनेक्ट करता है, ये बाईपास से जोड़ दिया है। ये रोड बांधवगढ़, उमरिया, आगे फिर शहडोल और आगे जाएगा बिलासपुर तक, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ तक यही चलेगा। फिर अभी हम लोग MP पे ही हैं। अब देखिए सुंदरता, देखिए आप, क्या मस्त घना घना है, सब कुछ हरियाली है। बहुत सुंदर मौसम है, लेकिन मौसम जो है दिसंबर के हिसाब से माताराम उतनी ठंडी नहीं है। तो हम लोग बैंगलोर से आए थे, तो अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे कि बहुत सारे कपड़े लेके चलना है, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, पूरा घर के अंदर गलाता है और दिन के टाइम पे बहुत ठंड रहती है। तो हमने इतने कपड़े रखे हैं कि हम क्या बताएं, और वो अब लगता है कि यूज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो है ठंड है नहीं, और हम यहाँ और 7-8 दिन रहेंगे इस एरिया में। तो अगर 7-8 दिन वो नहीं पड़ा ठंडा, तो फिर हमको वापस ले आना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये भी है कि अगर ठंडी थोड़ा लेट पड़ रही है तो लेट तक रहेगी भी, है ना। देखते हैं क्या होता है, बट ठंड तो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए दिसंबर के हिसाब से। पिछले साल इतनी ठंड थी कि हमको घर में हमारे हीटर नहीं था, बस ऐसे ही मतलब काम चला हुआ सेटअप किया रखा था। तो हम चारकोल लाते थे, कोयला जलाते थे और एग्जॉस्ट फैन चालू कर देते थे, तो धुआं बाहर निकलेगा घर से, और घर के अंदर ही रखते थे मस्त। उसी में मस्त बैंगन डाल दिया गया, मम्मी ने टमाटर डाल दिया उसी में, और वहीं बैठे बैठे लिट्टी बन गई या कुछ ऐसा बन गया, रखड़ बन गया, और वहीं बैठे बैठे आग तापते तापते हम लोग बात करते करते, एक दूसरे की बातें करते, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसी बातें करते करते हम लोग खाना पीना खा के वहीं अपना सो जाते थे। रूम अच्छा गर्म हो जाता था। तो देखिए, ये सब चीज़ का भी अलग मज़ा है। लोग बोलते हैं इधर की बातें उधर नहीं करनी, यार इधर की बातें उधर मत करिए, आपस में तो बात करिए, गॉसिप करिए, इसी में तो मज़ा है। अब आदमी सोचेगा कि नहीं हम तो कुछ बात नहीं करेंगे, तो मज़ा नहीं है। खैर, होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा इस रोड ट्रिप का, तो बने रहिए, मिलते हैं आगे। ये बगल में एक डैम है, पता नहीं आपको दिख रहा है, क्लियरली दिख नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे आ रहे हैं बीच में। आगे अगर दिखता है तो दिखाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, यहाँ से, हाँ यहाँ से आ रहा है, दिख रहा है, हाँ यहाँ से दिख रहा है, हल्का है, पेड़ कम है यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक पानी का स्रोत है और ऑल्सो एक पिकनिक स्पॉट है। चलिए आगे। जगह बने हुए क्या यहाँ पिकनिक करने के लिए? जगह नहीं बने हैं, लेकिन फिर देखिए, ये देखिए गाड़ी का रास्ता गया है, यहाँ से लोग अंदर गए हैं। अभी तो गैया पिकनिक कर रही है। देखिए गए हैं लोग, चले क्या अंदर? चलो चलते हैं, 2 मिनट लगेगा, देख लेते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ का। कौन सा डैम है? अब डैम तो मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये कटनी का ही है डैम। लोगो है ना, काऊ है ना बेटा, काऊ दिख रही है ना? अरे काऊ बड़ा है काफी। ये जरूरी है, इस तरह के जो पानी का बनाते हैं ये बहुत ज़रूरी है। डैम हो चाहे बड़ा बड़ा तालाब हो, इसको बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि सिटी के बाहर में अगर आपने ऐसा बनाया है और बारिश अच्छी हुई है तो पानी तो स्टोर होता है, नंबर 1, पक्षी जानवरों के लिए अच्छा होता है, नंबर 2, और जो ग्राउंड लेवल का पानी है ना वो भी अच्छा इससे बनता है, पानी सींचता है अंदर, है ना। बोरिंग का पानी अच्छा आता है, क्यों माताराम? हाँ, यहाँ पे और थोड़ा क्लीन वगैरह करके मेंटेन रखे ना तो सच में पिकनिक स्पॉट बनेगा। पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे लोग आते हैं ना। तो गंदा है, देख यहाँ आपको गंदा लग रहा है क्योंकि आप उस नज़र से देख रहे हो, ऐसा नहीं है। जिसको पिकनिक बनानी है वो अच्छा आगे जाता है, वो थोड़ा सा साफ जगह ढूंढता है। अब गाय भैंस है तो थोड़ा सा रहेगा ही, लेकिन फिर अपने हो जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं। पिकनिक में तो यही रहेगा ना भाई, आप जंगल में बना रहे हो तब थोड़ी कि पूरा आप पूरा अपना AC का पूरा सेटअप ले आए हैं घर का और फिर पिकनिक मनाएंगे।
जाएंगे तो क्या मतलब फिर। ठीक है, चलते आगे फिर बताते हैं। यहाँ से दाएं मुड़ रहे हैं, ये हाईवे हमने छोड़ दिया, ये हाईवे चला जाएगा आपका अनूपपुर आगे, ये वाला ना। हाँ आगे चला जाएगा। हमने यहाँ से दाएं ले लिया है, अब हम उमरिया की तरफ अंदर जा रहे हैं, है ना। ये उमरिया की तरफ रास्ता है, इस उमरिया रोड। ऑफ कोर्स ये सिटी के अंदर जा रहे हैं तो सिंगल रोड है, अभी हाईवे वाला है, 4 लेन वगैरह नहीं है यहाँ पे। सिटी की तरफ अग्रसर है। उमरिया भी जिला है ना। हालांकि जिला के हिसाब से यहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही है। उसका कारण ये है कि बगल में शहडोल है, मतलब पास पास बड़े बड़े शहर लगे हुए हैं। पाली है, पाली करके एक है, वो भी उमरिया जैसा ही बाजार है, मार्केट एरिया है। और आपका शहडोल तो है ही, है ना। थोड़ा आगे जाएंगे तो व्यवहारी लगा हुआ है। और यस ये है, देखिए आपका धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है, लोग प्लॉट्स खरीद रहे हैं बाहर तरफ भी। अब इस तरफ भी देखिए लोगों ने बैरिकेड्स बना लिए हैं अपना प्लॉट लेके। हालांकि अभी ये जंगल एरिया दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे सब हाईवे से जुड़ जाएगा। ट्रेन्स वगैरह काफ़ी हैं उमरिया से, इन टर्म्स ऑफ की क्रॉस बहुत होती हैं। जितनी भी छत्तीसगढ़ से ट्रेन आती हैं दिल्ली की तरफ जाने के लिए कटनी होके, वो उमरिया होके जाती हैं। ये पता लगा कि सारी ट्रेनों का स्टॉप नहीं है उमरिया पे, सारी ट्रेनों का स्टॉप नहीं मिला है, बट फिर भी काफ़ी ट्रेनें हैं। और क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ से मुश्किल से 1.5-2 घंटे का ट्रेन के सफ़र पे आपको कटनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्वीनियंस का। आपको कहीं भी जाना है, चाहे साउथ जाना है, नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, हर जगह की ट्रेनें हैं। बांधवगढ़ एयर स्ट्रिप है यहाँ पे, इधर ही है क्या? हाँ, एक छोटा सा एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है। वो नेशनल पार्क किधर पड़ेगा? बांधवगढ़। यहाँ पे देखिए उमर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उमरिया एयर स्ट्रिप, दिख रहा है उमरिया एयर स्ट्रिप। तो यहाँ पे आपका एयरपोर्ट टाइप का भी बना दिया है। हाँ, सिर्फ बांधवगढ़ के स्पेशल, उमरिया में ऐसा कुछ है नहीं। सफारी के लिए ले जाते क्या? एकदम खुले में घुमाते हैं, शेर सामने दिखता है। शेर सामने नहीं दिखता है, आप जाएंगे सोच के शेर देखने के लिए, पर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि शेर अपने टहलने थोड़ी निकला है, वो तो अपना दिख गया तो किस्मत है। 99% टाइम नहीं दिखता है, तो सही समय पे जाना है। और बाकी एनिमल्स? बाकी एनिमल्स आपको वही हरिन वगैरह दिखेंगे, हिरन दिखेंगे। हालांकि रात को अगर आप बांधवगढ़ नहीं है, बांधवगढ़ से जब क्रॉस करेंगे ना, जब मम्मीगंज तरफ जाओ सीधी तरफ, बांधवगढ़ पूरे जंगल से क्रॉस करेंगे, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि रोड पे शेर दिख जाए रात के समय। अभी डाला था ना किसी ने वीडियो, विपिन देखे रहा हाँ। मम्मी, हाँ, कुछ दिन पहले ही डाले रहे वीडियो। विपिन हमारे जो रिश्तेदार हैं वो जा रहे थे ऐसे ही बांधवगढ़ से, रात को लौट रहे थे, सामने उनको रोड पे ही शेर बैठा हुआ था। हम भी चले रात को। हाँ, मतलब कहने की बाटा मारिएगा। चीता शेर ये सब दिखना किस्मत वाली बात है, क्योंकि तो जंगल है। अब वो थोड़ी आपको दिखाने के लिए घूम रहा है। तो किस्मत, ठंड के मौसम पे आपको समय से जाना है, सुबह नहीं आना है, शाम को नहीं आना, दोपहर के टाइम पे थोड़ा धूप रहेगी तब ठीक है। बरसात के समय में तो दिखते ही नहीं। खैर बाकी और जानवर जैसे आपको हिरन हो गए, बारहसिंगा हो गया, ये सब तो नॉर्मल ही दिखते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदर तो के तेरे लिए को यहाँ ही दिखेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आ गए हम लोग कार्यालय पुलिस अधीक्षक उमरिया मध्य प्रदेश। चलिए, तो यहाँ पे हम अपनी जर्नी को ख़त्म करते हैं उमरिया के। 70 रुपये टोल लगा है, टोल भी था एक रोड। कुल मिला के हमारी गाड़ी ने माइलेज अभी तक दिया है 20.2, 20.2।
78.1 किलोमीटर हम आए हैं, टोटल हो जाएगा ये 80 एनीवे। पर चलिए अब एंड करते हैं इसको, मिलते हैं अगले वीडियो में।